ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਬਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਾਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਜੰਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 5 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, 5 ਕਦਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੈਸਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 72 ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ 72 ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾ ਸਹਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ। ਅਗਰ ਲੜੋਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 50,000 ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਾ ਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੀ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ 50,000 ਸਾਹਬੀ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਭਜਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਗਾਲੋ ਗਾਲ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸੁਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ, ਬਸ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ? ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਬਜਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਬਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮਿਊਟ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 7% ਬੈਟਰੀ ਹੈ, 60% ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਾ ਚੜਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ, ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਲਕਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਲਾ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਮੁਸਤਕਿਲ, ਜ਼ਿਲੀ, ਬਰੂਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲੀ ਦਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਫਹਿਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਮਰਵਟ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਰਵਟ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਬਈ ਦੋ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਵੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ 'ਚੋਂ ਫਹਿਮ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਲਾਨਤੀ ਜ਼ੰਦੀਕ ਕਜ਼ਾਬ ਦज्जाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सच्चा मानता वा लेकिन कभी मैं नबी नहीं मानता उस तो बढ़ के लानती दुनिया च हो सकता है कोई किसी इंसान के दावे तो तुसीं इनकार करते हो। और इसी तरह मेरा ख्याल है 1122 साहब ਨੂੰ शायद लिटरेचर ਦਾ इलम नहीं है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ਨੂੰ नबी नहीं ना मानता वो बंदा काफिर है पक्का काफिर है दायरा इस्लाम तो खारिज है। और अगर वो बंदा जमात अहमदिया दे विच है तो फिर मुरतद होगा ਜਿਹੜਾ मिर्जा साहब ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। लिहाजा 1122 साहब तुसीं तैयारी करके आओ। नासिर अहमद साहब ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब दे मुतलकन दावा नबूवत ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ क्योंकि उत्थे बैठे बाकी लोग मिर्जा साहब ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਸ ਨਬੂਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਲਕਨ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਚੌਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੋ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। वजह की है कि उत्थे जितने भी तुहाडे फतवे तुसी दूसरे लोगों ते लाए ने गैर अहमदियां दे उत्ते या लाहौरियां दे उत्ते कुफर दे फतवे लाए ने उन्हां नूं दायरा इस्लाम तो खारिज कीता है वो तुसी किसी होर गल तो नहीं कीता हैगा। तुसी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे दावा नबूवत दा इनकार करन वाले नूं दायरा इस्लाम तो खारिज कीता है। ये सारे फतवे वही ने सारियां तहरीरां वो ने। लिहाजा नासिर अहमद साहब ने जिहड़ा दावा नबूवत दा इनकार कीता है ना वो ज़्यादा चाहेगा मिर्जा साहब दे इल्हाम दी और बशीर अहमद आमिर साहब दे फतवे दी और बशीर उद्दीन महमूद साहब दे फतवे दी। तुसी कह रहे हो कि नॉर्मल मामला है कोई बंदा ये कह दे कि मैं मिर्जा साहब दा सारे दाव्यां नूं मानदा वां दी हर गल नूं सच्चा मानदा वां लेकिन मैं नबी नहीं मानदा। ये इसे तरह ही है जिस तरह कोई ज़ंदीक ते लानती कहेगा मैं रसूल अल्लाह दी सारी चीज़ां नूं मानदा वां लेकिन मैं नबी नहीं मानदा। भाई कुरान ते कह रहा है कि जिहड़ा एक नबी दा भी इनकार करे पक्का काफिर है ते ये किस तरह हो सकदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नूं तुसी चूंकि नबी मानदे हो कोई बंदा उन्होंने किसी भी तरीके नाल नबूवत का इनकार कर दे तुसी वो मुसलमान समझते हो। मिर्जा साहब ने मुरतद कह दिता वो बशीर उद्दीन महमूद साहब ने मुरतद ते पक्का काफिर किया है जिहड़ा विचों हो के निकले ते जिहड़ा बाहर हो तो वैसे दायरा इस्लाम तो खारिज है ना। उन्होंने निकाह भी नहीं पढ़ने उन्होंने अपनी बच्चियां नहीं देनियां उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना उन्होंने पिछे नमाज नहीं पढ़नी उन्होंने 6 माह का भी बच्चा आवे भावें एक दिन का बच्चा आवे फोत हो जाए जनाजा नहीं पढ़ना दलीलां दित्तियां। अस्सलाम वालेकुम उपनाज भाई बैठे हैं आपको चले ओ यार म्यूट क्यों कर देता भाई बस उन्होंने कहा था थोड़ी तकरीर काफी हो गई है। ओ काफी है नहीं तो जो नहीं अबलाल साहब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ। ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਲੀਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? जी हाजिर सर, वैसे हाजिर हाजिर नासिर अहमद साहब ते मीर बा मुकाबला मीर लतीफ साहब दोवें जमात खिलाफती जमात दे ने ना। ठीक कह रहे हो। एक बंदा कह रहा है कि उन्होंने मुतलक नबूवत का दावा नहीं है, तो दूसरा बंदा कह रहा है कि साडे वास्ते मुसीबत खड़ी करेगा, फितना है, ये रिकॉर्डिंग भेजो। बिलाल हनीफ साहब मैं एक छोटी जी अर्ज करना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਆਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਸ਼ੱਦੋ ਮੱਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਕ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫालतू ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੱਦੋ ਮੱਦ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੌਕਫ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਫ ਮੁਝ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ जी जी नहीं ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੇਨਾ ਨਦੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਲੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਔਰ ਮੁਰਤਦ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਹੈਡ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਤਦ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾ ਤਾਹਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं बिलाल साहब गल दो बंदे, एक कहे रसूलुल्लाह दा एक लानती ते जलील आदमी कहे कि रसूलुल्लाह दा नबूवत दा दावा नहीं है, और एक कहे कि रसूलुल्लाह दा दावा है नबूवत दा, ते ओ दूजा जेड़ा कहे ना ना दावा नहीं है, कहे कि मैं सारी तहरीरां दी सही मानदा, मैं बड़ा प्यार करदा हां मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ना, लेकिन ओदा दावा नबूवत नहीं है, जा पर लानती आ फितनाबाज। इसे तरह ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਲਾਫਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਈ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਤੁਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵਾਇਲ ਉਲੂਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਲਿਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੋਈ? ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਬੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਵੋ ਤੇ ਅੰਜਲੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਵੋ। 5 ਵਕਤ ਨਬੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਲਾਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕਰਾ ਅੱਲਾ ਫੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 19 ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰੁੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਅਸਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ, ਜੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਢਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਫਾ ਜਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਫਾ ਜਾਨ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁਰੂ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨੂਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਬਈ ਪੂਰਾ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ। ਦਾਅਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰੂਈ ਇਖਤਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰੂਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਫਓਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਫਲ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਰੂਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਫਰੂਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਚਣੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਿਨ ਚ 5 ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਰਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਅਕੀਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੀਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਰਬੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੈਯਦ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਲ भाई लिया जाता। ठीक है, एक बंदे का वो टेरिटरी भी काफी जो है ना, अलबत्ता वो जो टेरिटरी जिस टेरिटरी की आप बात कर रहे हैं ना, वो भी काफी शेकी ग्राउंड्स हैं वो भी, जिधर आप कह रहे हैं एक खलीफा दूसरे खलीफा, ये इस्लामी दौर में भी और शायद इधर भी हम निकाल सकते हैं अगर चाहें तो बड़े आराम से कि कहीं मुश्किलात पेश आई हैं, दोनों के बीच ही मुश्किलात आई हैं। नहीं, वो कैंडिडेट बात हो रही है नबूवत की कि हमारा एक खलीफा कह दे कि वो नबी थे, दूसरा खलीफा कह दे नबी नहीं थे, ये बात हो रही है यहाँ पर। और जो थोड़े मसाइल होते हैं ना छोटे, वो खलीफा राबी रहमतुल्लाह ने उसको बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया है कि वो जो छोटे मामलात होते हैं उस पर खुद का नजरिया होता है, उसमें इख्तलाफ हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बहुत छोटी बातें। अब ये मेन बातें कि नमाज मुसलमान का काम है खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ मुंह करके नमाज पढ़ना, किबला की तरफ। ठीक है ना, अब मैं आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई नहीं कहा कि कोई आलम है, मैंने ऐसा दावा नहीं किया, मैंने कहा आम मुसलमान है उसको नहीं पता भाई। ठीक है, अपना जो बिलाल भाई हैं कहेंगे तो मैंने बता दूंगा, और वो मसर के लोग हैं, अरबी, हम समझते हैं अरबी के पास बहुत दीन है भाईजान, कोई बात हो तो अरबियों से जाके पूछते हैं, उन्हें ये नहीं पता खाना काबा किधर है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप बात करें वो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारा कोई खलीफा ये कहता हो कि हज़रत मसीह इस्लाम नबी नहीं है और दूसरा खलीफा कहता हो वो नबी है। ठीक है, और जो छोटे मामला थे उसमें ठीक है, आपका बात सही है कि पहले खलीफा राशिदीन में भी थोड़ा इख्तलाफ था, और ये चलती हैं छोटी मोटी बातें, वो अपनी समझ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है, बल्कि मैं आपने काफी कोशिश की इधर उधर जाने की। मेरे सवाल को जितना हो सके हत्तुल वसा आपने कोशिश किया अवॉइड करने की, लेकिन ये सवाल आपकी जान छोड़ नहीं सकता निलिका साहब। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर आपकी खिलाफती जमात की बुनियाद खड़ी है। आप जो आज लाहौरियों से अलहदा हो गए, आपको क्या लगता है क्या बुनियाद है आपकी? किस वजह से आपने उनसे मुबाहिसे किए हैं, फतवे लगाए हैं, किस वजह से?
आया कि इस वजह से लगाए हैं कि नमाज वो तरीके से पढ़ते थे, आप और तरीके से पढ़ते थे। इन मामलात को नमाज के अंदर रफ़ाई जैन करना या हाथ छोड़ के हाथ बांध के नमाज पढ़ना, इनको तो खुद मिर्जा साहब ने फ्री इख्तिलाफ लिखा है। भाई वो कह रहे हैं असूल पे हमें कि हमारे फ्री इख्तिलाफ है। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप मुझसे पूछ ले, मैंने आपको बता दिया कि ये भी फ्री के मसले हैं जो आपने अभी बयान किए हैं। सबूत मैं आपको दे दूंगा, सबूत हाजिर है रसूलुल्लाह के हवाले से। लेकिन जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों ये बताने में नाकाम है कि एक ऐसा बंदा जो खिलाफती जमात से होने का दावा रखे और कहे कि मिर्जा साहब का मुतलकन नबूवत का दावा ही नहीं है। वो मिर्जा साहब को जो मर्जी माने, इमाम मेहदी तलौरी भी मानते हैं, मसीह मौत जम्मा साहब भी मानते हैं, भाई वो नहीं मानते? आप उनको खिलाफती जमात में समझते हैं? भाई आप खलीफा की बात करते, चले आज से आ जाते हैं। आपके किसी एक खलीफा ने ये कहा है कि मिर्जा साहब को नबी ना मानो, नबूवत के दावे से इनकार कर दो तो खैर है। उन्होंने उल्टा इसके ऊपर कुफ्र और इस्लाम के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं पूरी पूरी। कलमातुल फसल पढ़े, मिर्जा साहब की हमारे उलूम खोल के देखे, वहां पे यही तो मसाइल हैं आपके लाहौरियों के साथ मुनाज़रे किस बात पे होते रहे हैं? क्या नबूवत के मसाइल पे आपकी उनसे बात नहीं हुई? इख्तिलाफ नहीं रहा? दो पार्टियां बनी इस बुनियाद के ऊपर, एक कहता था मिर्जा साहब को हम नबी मानते, दूसरा कहता हम नबी मानते ही नहीं है। उन्होंने अलग रख ली है अपनी जमात की बुनियाद, आपने अलग रख ली है। तो ये ना कहें कि मिर्जा साहब को नबी मानना या ना मानना एक बराबर है। हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया और मैं उस आदमी को बेवकूफ समझता हूँ जो ये कहे कि क्या कि मिर्जा अपना अहमदियों से बहस करे कि मिर्जा साहब ने शरीय नबूवत का दावा किया है या गैर शरीय। मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बिलाल भाई देखें इस बात आज मैनू नहीं मुकम्मल गल करन दिंदे हमने जो, लेकिन कितनी देर तकरीर सुने बड़ी बात, इस बात को ना इसलिए तकरीर इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि देखें उनका अगर ये बिलीफ नहीं है ना तो वो खिलाफती जमात से नहीं है और वो उनका अकायद खिलाफती जमात वाले नहीं है, ठीक है ना? तो खिलाफती जमात वाले नहीं है, बात खत्म है। हाँ ठीक है, वो मेंबर जरूर है मेरे भाई, वो मेंबर जरूर है, लेकिन अभी तक वो मेंबरशिप उनकी कैंसिल नहीं है, ठीक है ना? तो इस बात को यहाँ पे करके ना खत्म करें कि ठीक है। काइंड डॉक्टर साहब, मैं इस सादगी पे कौन ना मर चाहे आपकी। आप कह रहे हैं कि एक बंदा खिलाफती जमात का मेंबर है और वो ये कहता है कि मैं मिर्जा साहब का दावा नबूवत को नहीं मानता। ये कैसे सादा लोग हैं आप, कैसे सादे भाई हैं आप? मुझे आप पे प्यार आ रहा है वल्लाही। हकीकत है यार, मेरी बात सुन ले भाई। जो बंदा ये कहता है ना कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? बात को खत्म मैं बताता हूँ प्रॉब्लम। वैसे तो जो जमात के खुलाफा है ना आपके, हाँ बात सुन, जो जमात के खुलाफा और मिर्जा साहब के बेटे भी हैं, इमाम बशीर अहमद अहमद साहब, इनका फतवा है इस बात पे कि जो मिर्जा साहब की नबूवत का इनकार करता है वो जमात, सुन ले मुकम्मल तो लेने देखिए यार, जो इस चीज का इनकार करता है जमात अहमदिया से होना दरकिनार, जमात अहमदिया से होना दरकिनार, खिलाफती जमात से होना दरकिनार, वो मुसलमान ही नहीं है, दायरा इस्लाम से खारिज है। आप कह रहे हैं कि वो मेंबर है, मेंबर कैसे हो गया यार? मेंबर कहने का मतलब रजिस्टर्ड मेंबर तो है ना, वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, बस इतना कैनेडर भाई ये इनसे अंजलिका साहब से पूछ ले। चले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मैंने ऐसे करें, प्लीज बंद करें बिलाल भाई या अंजलिका भाई, ये टॉपिक कोई वो नहीं है, उनके अपने व्यूज हैं, उन्होंने बता दिए हैं, उनका हक है, राइट है, अपना व्यूज जो भी उनके है ना, जो भी है ना, वो अपने आप को किसी जमात से जोड़ते हैं ना कुछ जोड़ते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर वो है। ये किसने आपको कह दिया कि वो जमात से नहीं जोड़ते? नहीं जोड़ते, अहमदी कहते हैं ना, ये वो अपने आप को खिलाफती जमात का हिस्सा समझते हैं। जब आपने वो रिकॉर्डिंग मुकम्मल गौर से नहीं सुनी, मैंने सुनी है, मैं दोबारा सुनाने को तैयार हूँ। जब उन्होंने कहा ना कि इनकी रिकॉर्डिंग पीछे पहुंचाएं, ये फितना पैदा करे, वो कहते हैं आप मुझे डरा रहे हैं, आप मुझे धमकियां दे रहे हैं। मुझे ये धमकियां ना दें, ये मैं सुना देता हूँ आपको, मैंने वो 13 मिनट की चलाई थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरा सवाल ये है कि हम लोग आपसे जब बहस करते हैं तो आप तो हमें इस बात में मनवा रहे होते हैं कि नबूवत का सिलसिला जारी है, और जिस बंदे की वजह से मनवा रहे होते हैं उसके बारे में उसका अपना मानने वाला क्लेम कर रहा है कि वो नबी नहीं है। तंजीला बाजी, आपकी मुझे नजर ही नहीं आ रही है, प्राइवेट आईडी है तो मैं किस तरह लूं आपको? अच्छा बात ये है मेरे भाई, ठीक है ना, बात यहाँ पे क्लोज हो गई है, उन्होंने अपना अकीदा बता दिया है। आई एम श्योर यहाँ पे और भी अहमदी होंगे जिनके दिमाग में सवालात होंगे, जिनका नजरिया ऐसा नहीं होगा, फतवा होगा, चीजें होंगी, हर चीज होगी।
बल्कि मेरे लतीफ साहब तो कह रहे हैं कि वो कितना पैसा कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, जी जी मुसलमानों के अंदर मुसलमान होते हुए कभी कभी सवालात आते हैं, शुबे आते हैं, या तो उनको लगता है या डिफरेंट तरफ दिमाग चला जाता है। आप कह सकते हो कि वो इस्लाम से खारिज हो गए, ठीक है ना, लेकिन जब तक वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते आप कैसे चलोगे? हाँ मैं बताता हूँ। कोई मुसलमान सुन ले, ये सुन ले, कोई मुसलमान अल्लाह के नबी के दावे के ऊपर कहे कि मैं उनको नबी नहीं मानता, मैं उनके किताब को मानता हूँ, उनकी हदीसों को मानता हूँ। आज मुझे दुनिया का कोई एक मुसलमान आलिम या मुसलमान ला दे जो कहे कि वो मुसलमान है, इवन दैट आप कुरान और हदीस से साबित नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बंदा कह रहा है इसके बारे में अंजलिका साहब की भी वही राय है जो आपकी राय है, पूछ दें इनसे। हाँ बिल्कुल, मैं आई थिंक अंजलिका भाई देखें यार, उनका वो अगर नबी नहीं मानते ना तो वो खिलाफती ग्रुप से नहीं है, ठीक है ना, तो वो है उस दूसरे ग्रुप से जो मुजद्दद लाहौरी 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 ग्रुप। हाँ अब जी अंजलिका साहब यही है आपकी राय, बस सिंपल एज दैट, ले देना उनसे, ले देना। नहीं कैनेट भाई मैं आपको बता देता हूँ, पता क्या अभी तक ये शख्स की जिसकी बात कर रहे हैं ना वो मौजूद नहीं। अब समझे इस बात को कैनेट भाई, मैं यहाँ पर मौजूद नहीं। उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है मुकम्मल भाई, यार अंजलिका भाई एक सेकंड यार, बिलाल भाई देखिए, अंजलिका भाई बात सुने, इस बारे में मजीद टॉपिक छेड़ना ना सिर्फ एक चस देने वाली बात और कुछ नहीं। सुने मेरी बात साहब यार, खत्म करें इसको। बात ये है कि वो वहाँ जितनी हमने ऑडियो सुनी है ना उतने पे हम इतना करते हैं, ठीक है ना, हमने कोई नहीं सुननी है यार, सही कह रही है वो, ठीक है, जितनी रिकॉर्डिंग हमने सुनी है उतने बेसिस पे हम लोग इतना अज्यूम कर सकते हैं, हमें इससे ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा अजम्पशन हमें करनी भी नहीं चाहिए। जितना है कि शायद उनके ख्यालात डिफरेंट है, उनके ख्यालात डिफरेंट हैं, वेरी वेल, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई अब मुझे समझ नहीं आ रही, बिलाल साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है वो ठीक है, वो इंटरनली डील कर लेंगे। दूसरा कुछ सवाल करते हैं कैनेट भाई, आप अपना सवाल रखें बिलाल भाई से। क्या चीज सवाल करें कोई बिलाल भाई से, वो बस टॉपिक इसको क्लोज कर दें, बिलाल भाई जवाब देंगे। जी जी मेरा ये सवाल है, आपको टॉपिक क्लोज कर दें भाई, क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है? तो दूसरा सवाल करेंगे, मेरी आवाज आ रही है यार मियां जी ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਸੀ, नहीं कोई और सवाल, इस टॉपिक को नहीं चलाना, कोई और सवाल कर देता हूँ। जी अच्छा बात खत्म। मेरा एक सवाल है यहाँ पर खसूसन बिलाल भाई से, और आमतौर पर अगर कोई जवाब देना चाहे। यार वैसे ये बात भी गलत है ना कि एक बंदा सामने नहीं है और उसके बारे में बात हो रही है, या तो सामने बिठाएं तो बात करें, अलग बात है, ठीक है ना, यही मैं कह रहा हूँ, बात खत्म। अच्छा ठीक है, खत्म हुई। अभी मेरा दूसरा सवाल है बिलाल भाई से। अच्छा मुझे अभी तक थोड़ा ये समझना चाहता हूँ इस बात को कि जो पहला शख्स था इस दुनिया में वो मट्टी से बना था क्या, जैसे आदम अलैहिस्सलाम? जी बिलाल भाई। अच्छा मैं कंफर्म पे हूँ कैंडिडेट साहब, मुझे ना 3-4 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है? ठीक है जनाब, आप पीछे जाओ, कंफर्म पे आए। दूसरा टॉपिक है, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी तो दे देना। सर नहीं देना ताड़ी जवाब, सवाल का जवाब बता दिया, ताड़े सवाल का जवाब उससे ज्यादा की करना है? ताड़े सवाल का जवाब मिल गया, उनके ख्यालात अलग हैं, गल खत्म हुई, रजिस्टर्ड मेंबर वो हैं, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, और सुनाए कैनेट भाई, आप कैसे हैं? बात ये है कि ये जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी आवाज आ रही है आपको? जी मियां जी। जी 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 इसमें भाई आपने जो सवाल किया ना, मेरा फाहम इसमें ये है, नहीं छोड़ दें यार उसको मियां जी, फहम अपना छोड़ दें, टॉपिक क्लोज हो गया है। मट्टी वाली नहीं कैनेट भाई, वो अच्छा मट्टी वाला, दूसरे सवाल के जवाब दे रहे हैं। मट्टी वाली, ठीक वो मट्टी वाला, वो जो पहली साहब ये ना उसको तो मैं ना करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैं दूसरी बात भाई भाई मैं मेरी बात भी सुनना यार, मैं
मैं पिछले 30 मिनट्स या 45 मिनट से गायब था, तो पीछे सब ठीक था? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। यार ठीक था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली उस टॉपिक पे लगे हुए थे, जबकि वो शख्स भी सामने नहीं है, नासिर अहमद भाई, और पता नहीं खिलाफती जमात में हाँ है। यार, उसको बिलाल भाई उसकी जान छोड़ देते ना, अब छोड़ें उस टॉपिक को। जब नासिर भाई आएंगे ना, अगर वो आना चाहेंगे, अगर वो इसके बारे में बात करना चाहेंगे, वो आगे कर लेंगे। इसके अलावा तो हम क्यास रही यही कर रहे हैं ना, इसकी ये नहीं करनी चाहिए। उनको नहीं कोई क्या सराई नहीं कर रहा, मेरा दावा है कि मैंने कोई क्या सराई नहीं की, ये मेरे पे इल्जाम है। ठीक है, आपने नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात। अगर मैंने क्या सराई की है तो आप मुझे झूठा साबित कर दें यहाँ पे, मैं क्या सराइयाँ कर रहा नहीं हूँ। करना, लेकिन ये ना कह करें। दिया यार, उनके ख्यालात डिफरेंट हैं तो ठीक है ना, बस बात खत्म करी है। ठीक है सर, कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो। ये मैं इधर ही हूँ, सुन रहा हूँ आप। जी बोल। अच्छा एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। आप उपनाइस, अगर आप कहीं जाते हो तो प्लीज बता के जाया करो। सॉरी, वो मैं एकदम से जाना पड़ा था, तो मैं बता नहीं सका। आई एम सॉरी। क्यों, कुछ हुआ है, गलत हुआ है कुछ? फजीला साहब, मेरे ऊपर बहुत सारा फतवे लग गए हैं आज। अच्छा यार, मैं भी चला गया था थोड़ी देर के लिए, मुझे भी काम पड़ गया था, बल्कि मैंने निकलना भी है थोड़ी देर में। तो अच्छा हाँ, तो ये है कि मैं क्या निकलूंगा थोड़ी देर के लिए। फतवे कैसे लग गए आप पे? यही कि मैं कमेंट्स करो वो नहीं कर रही, सही नहीं। अच्छा, ये नीचे एक लानती राजपूत नामी शख्स बकवास कर रहा है, इसको म्यूट करें। अभी कर देते हैं यार, अभी कर ये देते मैं कर अभी कर देते हैं, मैं कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो जैसे आप घबराए नहीं, फतवा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ आप पे, क्योंकि आप मेरी मॉडरेटर हैं, और कोई नहीं लगा सकता। तो नहीं, बाकी फतवों की खैर है। हाँ मत उसकी परवाह ना करें, ये फतवे इधर उधर लगते रहते हैं। चलो सही है, ओके चलो फिर बात करो। आप सारी बात नहीं करनी। कंटिन्यू। और उपनाइस, मुझे काइंड हाथ क्यों नहीं ऊपर उठा सकता? यार वो प्राइवेट आईडी मुझे नजर ही नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, प्राइवेट से पोस्ट उठा सकता है, प्राइवेट आईडी से पोस्ट उठा सकता है, बाकी नहीं उठा सकता है। ओके चलो ठीक है, तो फिर आप लोग बातें करो। ठीक है, चलो बाजी पे भी आज लग गया फतवे। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। जी मियाँ जी कुछ बता रहे थे। मियाँ जी बोले। जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने आदम से इंसानियत की इब्तिदा की है। बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला ने आदम से इब्तिदा की है इंसानियत की, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मुख्तलिफ जगह से इंसान को पैदा किया हुआ है। जैसे कि कुरान में मुख्तलिफ मट्टियों का जिक्र भी करता है अल्लाह, कि हमने इंसान को खारदार मिट्टी से पैदा किया। हम पे कहता है कि हमने इंसान को कनकनाती मिट्टी से पैदा किया। मसलन ऐसे जहाँ जहाँ से अल्लाह ने पैदा किया, वहाँ वहाँ की मिट्टी का अल्लाह ने जिक्र कर दिया। क्या हो गया तुम्हें, क्या कर दिया? यार पता नहीं, मैं बैग गया हूँ थोड़ा सा एक चीज के लिए, वापस आया हूँ तो ये ब्रॉड गिरी हुई थी। वो मेरा ख्याल है अभी हो जाता
चलो गल मुक्की एक तरह से। वो पूछ रहे 1 घंटे से यार एक बंदे के ऊपर उसी पे वो तो टॉपिक में तकरीबन खत्म करके गया था, वो फिर कैसे आ गया यार? उस मैं तो वक्त से चले जा रहा है। मैं असल में मैंने तुम्हें भेजना था, कोई कॉल कर रहा था कि मैंने तुम्हें से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी, लेकिन ये है कि वो हो गया मामला, भी देख लो ठीक है, लेकिन बाद में बात करूंगा उस बारे में। इसके अलावा जो है वो कब से पीछे चला जा रहा था, मैं तो गया हुआ था लेकिन पीछे से चले जा रहा था। तो मैं पीछे से सुन रहा था कि हाँ कभी कभी बीच बीच में आके, लेकिन मेरे कान पड़ गया था दूसरा। ठीक हो गया, करो करो करो। करो यार, देखा रश सुबह से नहीं हुआ था, अभी ऐसी बातों पे रश हो जाता है यार। हाँ देखो यार, इल्मी गुफ्तगू मेरी और उसकी जीशान भाई के दरमियान भी और चल रही थी, वैसे भी तो सारे परिंदे उड़े हुए सी इत्थों। उन सारे परिंदे घर दी छत ते आके बह गए ने, वेखिया ते तमाशा चल रहा। सही वैसे इस एग्जाम्पल दी है इंसानों की ना, परिंदों जैसी, इधर उधर भटकते भी रहते हैं, उड़ते भी हैं, उड़ना भी जानते हैं। सही बात है यार, क्या माशा। अच्छा कैनेडर भाई, आप भी आजकल वो क्या कहते हैं ओपन आइज भाई के राइट हैंड है, तो इन्हें कोई यार मशवरा राइट हैंड नहीं इन्हें हूँ उसका, मैं लेफ्ट हैंड भी नहीं हूँ मेरे भाई, मैं कोई हैंड नहीं हूँ नहीं नहीं उसका। आप इन्हें कोई मशवरा दें, पता क्या ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने ब्राड लगाई हुई है, जैसे एक खाली घर नहीं होता, वहां पे दिल करे तो वो नशई आकर नशा करना शुरू कर दें। अगर किसी का दिल किया तो नमाज पढ़नी तो नमाज पढ़ लें, ये गलत बात है। इन्हें चाहिए कम अज कम एक मौजू लगाया करें, ताकि किसी को पता हो हमने गुफ्तगू करनी क्या है, उसके आदाब क्या हैं। ये तो ना तो किसी को मसलन बताते हैं, जो हो जाता है। मैं आया हूँ ना, मेरा दिल जो किया मैंने वही बात शुरू कर दिया आके। अब पहले नहीं पता क्या बात हो रही है, कोई चक्कर नहीं है, मुझे नहीं पता, कोई दूसरा आया उसने अपनी बात शुरू कर दी। ऐसे ना तो किसी को पता चलता है कि बात क्या हो रही है, और वहाँ जहाँ पर हमने बात क्या करनी है। ठीक है, आपका जैसे एक मौजू है ना, बहुत प्यारा मौजू है आपका, पहले उसको लगाएं, वो जब तक क्लियर ना हो दूसरा मौजू ना लेके आएं, उसको क्लियर करें फिर दूसरा मौजू बनाएं। ठीक है, इस तरह पता चलेगा किसी को कि मैंने बात यहाँ पर जाके करनी क्या है। अब हम जब बात कर रहे हैं ना, नीचे से कोई आएगा तो वो जो भी उसका दिल होगा वही बात शुरू कर देगा अपनी मनपसंद की, जैसे एक वीरान घर में जाके बात कर रहा है। ये भी दुरुस्त नहीं है। इस पर ना आप लगाएं सामने लिख के कि हमारा मौजू क्या है, हमने बात कहाँ क्या करनी है। आप एक मौजू बनाए ना कि इस हदीस के तहत जंगे नहीं हुई, हर बंदा आके अपना बताए कि भाईजान इसमें वो क्या राय देता है, तो समझ में आता है कि हमने बात ऊपर जाके करनी क्या है। ठीक हो गया। ये सजेशन बॉक्स में इसको ओपनाइज ले लो यार, अच्छा अच्छा इनका सजेशन है। नहीं नहीं, सजेशन बहुत प्यारी है, सजेशन बहुत प्यारी है। दूसरा ये कि हमारा सुबह थोड़ा सा बैठे थे, हाँ हमारा वो लगाते नहीं है, पोस्टर वगैरह बनाना नहीं आता इतना ख़ास कोई, लेकिन ये कि चलो अच्छा आइडिया है। मुझे पोस्टर क्योंकि बनाना आज सीखना है वैसे यार, भी वो पोस्टर बनाते हैं अपने शेख आदि साहब ना, आए हाय हाय हाय, कमाल ग्राफिक्स। उनको एज ए फ्रीलांस हम ना ले लें थोड़ी देर के लिए, फ्रीलांस सर्विस देते हैं वो। थोड़ी देर के लिए पे करो ना अपनी जेब खाली करो तो फिर आएगा। हाँ दे देंगे यार, क्या हो गया भाई। आ, ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा तुम्हें आइडिया ऐसे है। हम तो वैसे तो मजा सुबह आ आराम रहा से अच्छी बात कर रहे थे, 5-10 लोग बैठे हुए थे, उन्हें है। पता होगा, हम 5-10 लोग बैठे हुए थे, अच्छी बातें हो रही थी, हल्की हल्की बड़ी उस पे जबरदस्त बातें हो रही थी, डिस्कशन। तमाम इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। उसके बाद ये टॉपिक किया 6 लोग बैठे थे, लगा दी। 6 लोग बैठे थे उधर, 6 लोग उस पे बैठे थे, 6 लोग बैठे थे। सिर्फ 6 लोग। सही कह रहा है। जैसे ही कोई चीज शुरू हुई है उतने सारे परिंदे आके बह गए ने, है जी। पहले उड़ गई थी, छेती छेती उड़ भी जाते ने। यार ये कह रहे हैं इनको नज़र नहीं आ रही हमारी, ये कह रहे हैं साहब फ्रीज हैं लेकिन आवाज़ आ रही है, कहते कम ख़राब है। काम खराब है यार। एक सेकंड देखते हैं क्या सीन है। मेरे ख्याल ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे लोग। ऐसे ही नीचे से रिक्वेस्ट डाल के देखें, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप नीचे से, रिक्वेस्ट। आप लोग नीचे से रिक्वेस्ट। अस्सलाम अलैका या रसूल। रिक्वेस्ट तो डाली जा रही है।
हाँ अब ठीक हो गया है, अब मुझे सब कुछ नजर भी आ रहा है। इसका मतलब है सारे एक रिक्वेस्ट डाल के ऊपर आए तो फिर ठीक होगा। अच्छा, नहीं वो फिर ऊपर वालों को हम नज़र आ रहे हैं, नीचे जो है उन्हें नहीं नज़र आ रहा कोई। ठीक हो गया। तो सुबह तो चलती रही, काफी अच्छी तरह गुफ्तगू चलती रही यार, बड़ा अच्छा लगा सलाम अलैकुम तबारक। क्या हो गया था भाई? यार। बिलाल भाई ये नहीं यार, सीधी तरह सलाम अलैकुम बोल दिया करो यार। मेरे मुंह से निकल गई कि क्या हो गया था लायन को। यार ये सलाम पे आपको इतराज क्यों है इस वाले पे? यार भाई समझ के सलाम कर दिया करो यार। आप मुसलमान हो जाए, मैं आपको अच्छे वाला सलाम करूंगा। भला कैसे करूंगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, ऐसे वाला करूंगा। अभी मैंने नहीं ये किया। पलट के कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आप कहें बस सलाम अलैकुम, ये आपका हक है। मैं क्यों कहूँ आपको भाई, मैं तो आपको सलाम अलैकुम ही करूँगा। नहीं, दोनों दुआएं हैं कैंडिडेट भाई, कोई मसला नहीं, कर ले, दोनों दुआएं हैं, कोई बात नहीं। अगर असल वो हमें में समझते हैं ना तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं हाँ जी, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अगर हम कैंडिडेट भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। ओपन आइज भाई बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, आपसे बड़ी मोहब्बत है, सारा कुछ है। लेकिन एक चीज़ होती है कि एक असूल होता है, उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकता। अगर मैं करूँगा तो फिर मेरा और आपका इख्तलाफ ख़त्म है, फिर हम दोनों एक ही पेज पे हैं। लेकिन मसला यह हम एक पेज पे खड़े नहीं हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है यार। जब सुलह हुदैबिया पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त वो अपना भेजा ना उनको, तो उन्होंने इतराज़ किया कि या मोहम्मद रसूलुल्लाह से रसूलुल्लाह काटे। भाई हमने आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो हम तो आपसे हमारा इख्तलाफ क्या रह गया? तो यही तो इख्तलाफ है कि हम आपको रसूल नहीं मानते। तो जब हम दोनों एक चीज़ पे मिल जाएंगे और हम कहेंगे यार ये कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब हम सेम पेज पे आ गए, तो इख्तलाफ खत्म। समझ आ गई वैसे आप हैं बड़े अच्छे इंसान, यकीन माने। हाँ यार, अच्छी बात है, थैंक यू यार। बुरा लगा, मेरी बात बुरी लगी, मैं वापस ले आया। नहीं बुरी नहीं लगी। और पहली बार किसी ने तारीफ की, मेरे घर में भी कोई तारीफ नहीं करता। नहीं, आप में और ओपन आइज में फर्क ये है कि आप थोड़े बहादुर हैं, ओपन आइज बहादुर बंदा नहीं है, सीधी सी बात। ओपन आइज मुझसे 10 ओ यार मेरी बात सुने बिलाल ओ भाई, नहीं है भाई, नहीं है, 10 गुना ज्यादा बहादुर है। ओ नहीं है भाई, मैं नहीं बहुत ज्यादा बहादुर है वो। मैं देखूंगा, लेकिन आप ये भला क्या करता है, ये आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। वो सूरज नहीं है, सूरज की बारी सुनिए ना, ये आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, समझ जाओ मेरी बात को। नहीं बिलाल साहब, सूरज चांद से रोशनी पकड़ता, याद आया कुछ? खुदा दा वास्ता जी, वो सूरज है, मैं वो चांद हूं। यानी ये आपसे प्लीज नवा कट्टा कोई ना, यहाँ पे सूरज का कायम मकाम कौन है और चांद का कौन है? थोड़ा समझा दे। देखो यार, मैंने ओपन आइज की तालीमात को जलाली रंग से पेश कर रहा हूँ, तो यू नो नहीं, इसमें चेंज तो आया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप तब तक जब तक आप के अंदर किसी का इख्तलाफ, किसी की तनकीद मुकम्मल तौर पे बर्दाश्त नहीं ना कर सकते, तब तक आपके शख्सियत में उस तरह निखार नहीं। आपके अंदर भला क्या चीज़ है? आप चूँकि जब भी यहाँ पे बड़े बड़े अहमद नज़ीर साहब और इमरान खालिद साहब जो बड़े मुखालिफ हैं बैठते हैं, तो कंट्रोल आप करते हैं। जिस दिन इसको ओपन आइज कंट्रोल करेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा। तो बड़ा मिशन आ गया, तुहानू नहीं पता। थाने बिठा के ते आप निकल जाता साइड तो कल मैं कहा मैं तो है ही नहीं सी। बिलाल भाई आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं पंप नहीं होना, ठीक है ना? मैंने पता है, मेरी बाउंड्रीज का पता है, मुझे मेरी बाउंड्रीज का पता है। हाँ, ये आपको मैं क्या कह रहा था कैंडिडेट भाई, इसकी बाउंड्रीज है कुछ, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता। यार मेरी गल सुनो, एक होती है, आपने पढ़ा होगा क्या नाम, पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक चीज होती है पैलेस पॉलिटिक्स। वो ओपन आइज सही समझता है उसको। एक सेकंड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं अभी बाहर गई हूँ, फिर मैं अंदर आई हूँ, तो आपकी ब्रॉड ओपन आइज सही नहीं नजर आ रही। हाँ, ओपन योर आईज यार इसको रीस्टार्ट कर ले, एक दफा रिस्टार्ट करो, दोबारा आ जाए, बाकी नजर नहीं आ रही मुझे सब। हम आ जाएंगे। मैं बंद करके आता हूँ, मैं बंद करके बंद करके हाँ, बंद करके दोबारा आए वापस।
में आई, एक काले कपड़ों में आई, कोई गंजी पहनी हुई थी। जाली वाला सूट, हाँ जाली वाला सूट है बिल्कुल। तो वो जाली वाले सूट में आई, मुझसे बगल की हुई, मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। लो जी, ऊपर से असर भाई अल्हम्दुलिल्लाह से देखो कैसा बेशर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। हद होती है बेशर्मी जी की। जी, जो मिल जाए उसी पर सबर शुक्र। ये थोड़ी देर पहले सरवा मोमा बहन ने एक इल्हाम बताया था कि कोई दवाई खाने लगा तो इल्हाम हुआ खतरनाक। मैं इसको वैसे तहरीफ समझता हूँ, ये असल में इल्हाम कुछ इस तरह था, अन्नी दिया जहरी। तो इसने फिर जो है ना वो बाद में इन्होंने चेंज करके उसको सिर्फ खतरनाक कर दिया। हाँ बिल्कुल। औरतें नंगे नहा लेती थी। चलो जी, तेनू केड़ा विखदा है? केड़ा दींदा है भाई? लो जी, मैंने पंजाबी एक गाल नहीं करी, शुक्र है। और देखो हुण लिखण वाला कोई चंगा बंदा होएगा तो उन्हें क्या नहीं लिख दे कड्डी ते उन्हें जिस तरह दी, मतलब तुसी देखो जिस तरह स्पीड है जो आप दी ते जिस तरह दे अल्फाज हैं तो उन्हें ते यही क्या एक काना है गया इनू करा मैं, उन्हें काने का लफ्ज भी इस्तेमाल किया होना है असर भाई, लेकिन वो लिखने वाले ने क्या मिस्टेक कर दी। बिल्कुल हो सकता उन्हें क्या होया नहीं देनू केड़ा दींदा है अन्नी दे ये उन्हें क्या इस तरह भी क्या हो सकता है, इस तरह भी क्या हो, इस अन्नी देनू केड़ा दींदा है। हाँ, और वो फोटो खिंचाने जब गया था तो उसने कहा जी आंखें खोलो, बड़ी मुश्किल से आंखें खोली उसकी, वो भी नीम आंखें और फिर बंद हो गई। देखें उनके हुलिये मुबारक में लिखा हुआ है कि आंखें देख के ऐसे लगता था नीम व नोदगी में, तो आपको क्या इतराज है इसमें? नीम गंदगी नहीं, नीम गंदगी से, गंदगी भरी आंखें से, शैतान वाली हर टाइम जब उनको टाइम मिल रहा उन्होंने कोई ना कोई नशावर चीज मादरत शोर है मेरे पीछे। जी मलक साहब बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये अपना हमारे उस्ताद मोहतरम है या कोई और है ये असद अल? जी जी अल्लामा साहब मैं ही हूँ, आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। है वैसे ये भी कोई निशान। सिस्टर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है वैसे ये भी कोई निशान। मलक साहब अल्लामा साहब मुझे नजर नहीं आ रहे लेकिन उनकी आवाज आ रही है। अब लो मैं आ गया नजर, आ गया अब आ गया, अब आ गया। देखें इकबाल आते आते आता है, देर लगती थोड़ी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜਰ ਬਿਲकुल जी जी सही है, मैंने मरना ही ऐसे हालत। अच्छा उस्ताद मोहतरम मैंने मसरूफ हो जाना है तो मैं चला भी जाऊंगा, तो यार आपसे इल्तिजा है वो अपनी पुराने कपड़े पहन के आए, वो ठीक है मेरे ख्याल में। पता तो चल जाता था ना ये उस्ताद मोहतरम है,
अल्लामा साहब आप बात बहुत अच्छी और बहुत गहरी और बहुत पहुंची हुई कर रही नहीं, हैं। नाम कर यही रहे हैं। रखिए सॉरी बेशक। सॉरी कर रहे हैं, बात तो सुन लेना देखे मनाजरा तो नहीं चल रहा ना हमारा, लेकिन बारी बारी बात करें तो अच्छा नहीं। आप बात बहुत गहरी बहुत पहुंची और बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मसला मैं इसमें कोई पहुंची नहीं कर रहा। मसला इसमें ये है अल्लामा साहब, मैं चाहता नहीं कि लोगों को पता चले ना, मुझे ये शौक ही नहीं है। जो आपके फैन है वो क्या करें? हमारे फैन है वो लोगों को हवा दें भजन, गर्मी का मौसम हैं? चल रहा है, वो लोगों को नहीं, हवा नहीं, दें, जो गर्मी जो का जो मौसम आपके चल रहा है। मानने वाले हैं, चलो फैन को छोड़े, जो आपके मानने वाले वो क्या करें? अल्लाह माफ करे, मैंने कौन सा दावा कर दिया कि लोग मुझे मानना शुरू हो गए? मलक साहब अल्लाह भाई कैसी इज्जत भी बातें होती है, कर कोई रहे हैं? एहतराम भी होता है। जैसे मलक आपका साहब मैं इज्जत आईडी फॉलो कर लो। मलक साहब और देखें, मैं कितना प्यारा कहता था अल्लामा, कोई मैं बंदा कितना ना- प्यारा कहता था, देखे ना, देखे मैं कितना प्यारा कहता था अल्लामा बंसी साहब। तो यार ये यकीन अब करें। मैं किसे बोलूंगा, किसको बोलूं? देखें वो दो बातें आपने कर दी एक साथ, इतना बोझ में उठा नहीं सकता, तो एक एक करके जवाब देता हूँ मैं। जो पहले आपने कहा ना कि वो जो इज्जत लोग करते हैं, भाईजान देखें लोगों की तरफ से दी जाने वाली इज्जत मैं नहीं समझता उसको। इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में है, वही देता है इज्जत, और उसी के हाथ में जिल्लत है, वही देगा जिल्लत। तो लोग तो भाईजान एक अब मैं क्या बताऊँ, ये सारी मुंह की बात है मलक साहब। कहीं मैं एग्री हूँ। मलक साहब ये सारी मुंह की बात है, सही है। असल में आपने मेरी वो आपको पता नहीं शायद कि मुझे कह दिया गया किसी के थ्रू, किसी को मैं समझ के ये भी कह दिया गया कि कादियानी है, पता आपको, बगैर किसी यार वो वजह तो के। बस पर लोड के आ गया ना जिसने बोला है। ओ मलक साहब बगैर किसी वजह के। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे यार, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है यार। मलक साहब बहुत सारी चीजें मैं बहुत कंडेम गलत हैं, करता हूँ यार इस इसीलिए- चीज को, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। नहीं मलक साहब दफा करे, गोला मार जिसने आपने भी बात बोला कर दी, है, मैं- वो जिसने भी मैं ये बोला है भाई, बात वो करता भी। वो खुद इस जद में आ गया। मलक साहब देखें वो तो अल्लाह की लाठी बेवाज है, मैं ये बात करता भी ना, लेकिन आपने एक बात की ना इज्जत है, तो उस वजह से मुझे ये करनी पड़ी कि मैं किसी और तरह सोचता नहीं मुझे पता है आपका, आप किसी भी ऐसी बात में नहीं पड़ते माशाल्लाह, तो इसीलिए तो मैं सर आपकी इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। मलक साहब अल्लाह का नाम है, ਤੁਹਾਡੇ स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजे सन उन्हें, क्या छाड़ दो मलक साहब, गोला मारो क्या मेरे स्क्रीनशॉट क्या है सर, मुझे भेज तुसी देना, किसी माफी तुसी मांगूंगा। नहीं भाईजान माफी मैंने मांगनी नहीं, ये खैर बहन की बराड़ है, दफा करे इस चीज को। मैं अगर आपने बात करनी नहीं मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने बोला, मैंने आज तक कहीं भी बैठा हूँ, किसी जगह पर भी बैठा हूँ, मैंने किसी कोशिश किया किसी की दिल आजारी मेरी तरफ से ना हो। मलक साहब आप किसी को मैं समझ रहे थे और उसको मेरे होने का मैसेज कर रहे थे बस। नहीं मैंने आपका ना मैंने आपको समझा और ना मैंने आपका मैसेज किया। छोड़ दें बाकी चलें यार, वो अहिर भाई ऊपर आए। हाँ अहिर भाई को ले लो, आई थिंक सो, ले ले अहिर भाई को ले लो। मलक साहब बस ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आई हैव जीरो। कम क्विकली, आई विल पे टू गो। लो जी, अल्लाह दे वाले हैं। अल्लाह हाफिज़। ये अल्लाह। Your name was सुनाए असद भाई, कोई इलाम शलाम सुनाए, रोया शोया।